My name is Pranav. We are students of chemistry honors final year. Today we are going to perform soil testing. I am Priyanshu. My name is Man. My name is Tanisha. I am Isha. My name is Paras. My name is Keshav. My name is Ajay. So in this beaker we take the soil sample 0.48 grams. Now we add So this is our OC1 solution in which we now going to add this solution in this 1 ml. फालतू ले लिया आधे पति है पूरा one vial of OC2. So this is our 12 gram of soil sample, and now we are going to add 24 ml of water in this. So this is our harvester machine which we use for sample reading. So as in harvester machine we clearly see that the standard pH is 7. So we dip this electrode at the pH standard 7. So we get the standard value 7 after dipping the electrode at this in this. Next standard value is 4.0 and 9.0. So now we put this electrode at the pH 4.0. Now the value is correct. We can clearly see that the 4 pH is given over here. We are going to dip this electrode in our soil sample and we get the reading. And after dipping the electrode in this soil sample we get the pH 7. Now next step of our sample is now we are going to calculate the EC of the sample. Now we are going to put this EC on our standard solution. So here this is our final reading in our harvester machine. So in our harvester machine this is our final reading of standard solution. Now we are going to find the reading of sample. Firstly we dip this EC on this sample. Now we are going to find the reading of the soil. This is our final reading of the sample. So this is our OC blank solution and this is our OC. Now we are going to add 47 ml of distilled water in both of these solutions. Firstly we will going to add the 47 ml of water in OC blank solution. Now similarly we are going to add this 47 ml of water in our OC solution, and we do this step after an hour. Now both the solutions are prepared and we take the reading after 5 minutes later. Now we are going to add the OC blank solution in this tube. Now we put this sample in our harvester machine for reading. So here this is the value of a blank OC solution. Now we add 3 gram of our soil sample.
To add 15 ml of ZNX solution. Okay. Now we add this solution in this soil sample. So this is our zinc sample, and we put this zinc sample in this shaking machine. For half an hour. Yeah, manganese. ml of soil sample. Now we add 15 ml of MNX. Now we pour this in our soil sample. Now we put this on shaking machine for half an hour. Now we add 3 gram of soil sample. Now we are going to add this solution in this soil sample, 15 ml. Now again we add this PSX solution in this blank solution sample of potassium. Pinch of charcoal in both the samples. Now we put this on shaking machine. Both the solution are in the shaking machine. Now we add 0.6 gram of soil. We add 15 ml of PHX in the soil sample. Add the PHX solution of 15 ml in this blank sample. Now we are going to add the 0.3 grams of charcoal in both the samples. Now we put this on shaking machine. Measuring tube in which we are going to add this zinc solution, and we will filter it. We slowly add this solution. Now we are going to add this manganese solution in this measuring tube, and now we filter it. जुकर में बोल प्रेस करेंगे, देन डाउन प्रेस करेंगे और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे. देन अगेन एंटर प्रेस करेंगे, फिर डाउन करते करते हम इसको मैंगनीज तक लेके जाएंगे. अब मैंगनीज आ गया है, इसको वापस ये मैंगनीज, अब इसको एंटर प्रेस करेंगे. देन ये हमसे ब्लैंक मांगे तो हम इसके अंदर मैंगनीज का ब्लैंक डाल देंगे. मैंगनीज का हमारा ब्लैंक था, उसको इस ट्यूब के अंदर डालेंगे और ओवरफ्लो नहीं होने देंगे, जस्ट थोड़ा सा और डाल देंगे. देन आफ्टर इसको पेपर से साइड से पोंछ देंगे, वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए. देन आफ्टर इसको मशीन के अंदर रखेंगे, इस तरह रखेंगे जो रफ सरफेस है वो हमारी तरफ हो. देन अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे. एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास ब्लैंक की रीडिंग आ जाएगी. दैट इज़ अ गुड रीडिंग. हमारे पास 318.3 रीडिंग आई है. देन आफ्टर हम डाउन प्रेस करेंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और फिर जो हमारा ब्लैंक था उसको वापस से हम अपने ट्यूब के अंदर वापस डाल देंगे. देन आफ्टर उसके अंदर जो हमारा सैंपल था उसको पुट करेंगे, ओवरफ्लो नहीं होने देंगे.
देन आफ्टर जो हमारा साइड से थोड़ा सा इसको अच्छे से स्क्रब कर देंगे, शायद थोड़ा पानी एक्स्ट्रा इस बार निकल गया है तो अच्छे से स्क्रब करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद इसको फिर देन मशीन में वापस से रख देंगे। मशीन में रखकर फिर से हम अपना एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और फिर से एंटर दबाएंगे, 123 डाल देंगे एंड देन आफ्टर एंटर प्रेस करेंगे। सो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 20.44। सो ये हमारे पास रीडिंग आ गई है। फिर हम Now we add the 2 ml solution in both 2 ml solution in this measuring tube. In this we add 4 ml of the solution. ZNX को माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए एज अ ब्लैंक यूज़ कर रही हैं। 2 ml हम इसमें डालेंगे, 2 ml ZNX डाल रहे हैं अपना ब्लैंक के लिए फॉर FE सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। कॉपर के लिए 4 ml डाल रहे हैं ZNX जो कि हमारा ब्लैंक। 3 ml डालेंगे, तो हम ZN 3 ml डालेंगे ब्लैंक सॉल्यूशन में। ब्लैंक पहले solution हमने में। सैंपल में डाला, अब हम ब्लैंक में डाल रहे हैं ZN। सैंपल में 2 ml डाल रहे हैं। ये ब्लैंक सॉल्यूशन है, इसमें भी हम 2 ml डाल रहे हैं। अब हम ये इसमें ZN3 गिरेंगे, 1 ml डालेंगे, ये उसका सैंपल है सोयल सैंपल में। नाउ अब हम जो ये हमारा ब्लैंक सैंपल था इसमें फिर से 1 ml ऑफ ZN3 डालेंगे बाय साइड वाइज, तो ये हमने डाल दिया है। अब इसमें हम ZN4 डालेंगे 2 ml सैंपल के अंदर। सो 2 ml जैसे कि ये 2 ml डालेंगे, तो दिस इज 2 ml ऑफ हमारा सोयल सैंपल। और 5 मिनट बाद अब इसकी हम रीडिंग ले लेंगे, करीब 15 मिनट आफ्टर। अब हम जो ये हमारा ब्लैंक सैंपल था इसके अंदर फिर से 2 ml ऑफ ZN4 डालेंगे और आफ्टर 15 मिनट्स हम इसकी रीडिंग ले लेंगे ZN की। ये हमने अपना ये इसमें सैंपल में अपना 1 ml ZNS डाल दिया है। अब हम अपना जो ब्लैंक सॉल्यूशन था फॉर आयरन उसके अंदर ब्लैंक के अंदर 1 ml ZNS डालेंगे। इन शॉर्ट 3 ml हो जाएगा ये टोटल। देन आफ्टर उसके बाद हम इन दोनों के अंदर 1 ml ऑफ Fe1 डालेंगे। सो अभी ये हम सैंपल में डाल देते हैं 1 ml Fe1। तो ये हमारा 1 ml हमने Fe1 डाल दिया है। अब हम ब्लैंक के अंदर 1 ml Fe1 डालेंगे, जैसा कि हम ये डाल रहे हैं 1 ml ऑफ Fe1 हो गया ये हमारा ब्लैंक के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे का Fe2, अब हम दोनों के अंदर फिर से सैंपल के अंदर भी 1 ml ऑफ Fe2 डालेंगे और ये हमारा Fe2 भी चला गया। तो अब हम सोयल सैंपल हो गया, अब हम ब्लैंक के अंदर 1 ml ऑफ Fe2 डालेंगे। सो अब ये जैसा कि हमारा हो चुका है। सो देन आफ्टर 15 मिनट्स हम इसकी जो रीडिंग्स हैं फॉर आयरन वो मशीन के थ्रू ले लेंगे। हमारा ये सोयल सैंपल था फॉर उसके लिए कॉपर के लिए, उसमें हम 2 ml ऑफ Cu1 डालेंगे। सो ये हमने सोयल सैंपल में 2 ml ऑफ Cu1 डाल दिया है। अब हम ब्लैंक सॉल्यूशन के अंदर 2 ml, जो कि हमारा ये ब्लैंक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अब हम 2 ml ऑफ Cu1 ड्रॉप करेंगे। 2 ml ऑफ सॉल्यूशन ड्रॉप करने के बाद अब हम इनमें डालेंगे Cu2। हम इसमें दोनों में इसमें हम 1 ml ऑफ Cu2 डाल के दोनों में और फिर फिल्टर करके फिर से 1 ml ऑफ Cu2 डालेंगे। तो जैसे कि अब हम डालने जा रहे हैं 1 ml ऑफ Cu2। तो ये
1 ml ऑफ CO2 जैसे कि हमारा बस दोनों में 1 ml ऑफ CO2 डालेंगे। ये अब हमारा वो सैंपल में डाला था, अब हम जो हमारा Blank. ब्लैंक था उसके अंदर 1 ml ऑफ CO2 डालेंगे। 1 ml CO2 डालने के बाद हम इनको फिल्टर होना रख देंगे। ये दोबारा से 1 ml उसमें फिल्टर करके 1 ml CO2 डाल दिया है। अब हम इनमें 1 ml ऑफ CO3 डालेंगे। ये हमारा सोयल सैंपल था, इसके अंदर हमने अब जैसे कि 1 ml ऑफ CO3 डाल दिया है सोयल सैंपल के अंदर। अब हम 1 ml ऑफ CO3 डालेंगे फॉर ब्लैंक फॉर द वैल्यू ऑफ ओपन इटसेल्फ। अब हमने ये इसमें डाल दिया 1 ml। सो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स हम इसकी रीडिंग ले लेंगे थ्रू द। ये 5 ml मैंगनीज का सॉल्यूशन है, में MnX डाल एज अ ब्लैंक। ब्लैंक के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 1/2 ml MN1 को ये इससे तोले मतलब मेज़र करेंगे, और मेज़र करने के बाद जो हमारा सोयल सैंपल था प्लस जो हमने ब्लैंक बना के रूप में लिया है MN के लिए, उसके अंदर इसको ड्रॉप आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं सोयल का सैंपल MN1 फॉर मैंगनीज, और उसमें 1/2 ml हमने ये डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस दोबारा से 1/2 ml ऑफ MN1 लेंगे, और उसको अब हम जो हमारा ब्लैंक सॉल्यूशन था उसके अंदर इसको ड्रॉप कर देंगे। सो ये हमारा 1/2 ml ऑफ MN1 जो सॉल्यूशन है वो हमने इसमें मेज़र कर लिया है। एंड नाउ हम ब्लैंक के अंदर इसको 5 ml में इसको ड्रॉप आउट कर देंगे। ड्रॉप आउट कर दिए तो हमने ये 0.2 ग्राम ऑफ MN2 ले लिया है। अब हम इसको दोनों में, सोयल का जो सैंपल था उसमें भी, और जो हमारा ब्लैंक था फॉर मैग्नीशियम उसके अंदर इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, इनको डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसको थोड़ा शेक करेंगे, और शेक करने के बाद हम इसको गर्म पानी में रखकर इसकी 15 मिनट्स के बाद उसकी रीडिंग ले लेंगे। और उसका हमने आफ्टर 1/2 एन आवर जो शेक होने के बाद जो हमारा सैंपल आया था उसको हम सोयल सैंपल जो था उसको हम इसमें फिल्टर होने के लिए रख देंगे। देन आफ्टर उसके बाद जो हमारा ये ब्लैंक सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हम दूसरी जो वायर है उसके अंदर इसको फिल्टर आउट कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फिल्टर पेपर है, इसको एज हम शेप देकर और इसको लगा देंगे। देन आफ्टर इसको हम इसके अंदर फिल्टर आउट कर देंगे, और उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये सारा फिल्टर निकल नहीं जाता। हमारा जो पोटाशियम का था उस वो 1/2 एन आवर हो चुका है, शेक हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर आउट कर देंगे। इसके अंदर जो ये हमारा सोयल सैंपल था उसको फिल्टर कर देंगे इस ट्यूब के अंदर, और जो दूसरा हमारा ब्लैंक सॉल्यूशन जो हमने बनाया था फॉर पोटाशियम उसको हम फिल्टर आउट कर देंगे दूसरी ट्यूब के अंदर। और कुछ आफ्टर सम टाइम ये जो हमारा फिल्ट्रेट है वो सारा नीचे चला जाएगा, और उसके साथ हम रीडिंग निकाल लेंगे। एंड उसके बाद अब इसको डाउन करके और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे। सो दिस इज EC मैक्रो एंड देन माइक्रो। अब हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे, और अब हमें जिंक पे दोबारा एंटर प्रेस करेंगे। सो अभी हमसे ब्लैंक की वैल्यू मांगेगा, तो हम जो हमारा सैंपल था उसके अंदर से ब्लैंक की जो ब्लैंक सॉल्यूशन हमने बनाया था उसको इसके अंदर डाल के और मशीन के अंदर रखकर वैल्यू निकालेंगे। अब हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। सो जो हमारे ब्लैंक की वैल्यू है वो तो 30.5 आई है। अब हम फिर से डाउन प्रेस करेंगे और देन आफ्टर एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे सैंपल ये हमसे जो मशीन सैंपल्स रखने के लिए बोलेंगे, तो जो हमने यहाँ पे ये इसके अंदर रखा था ये ब्लैंक का, इसको हम फिर से ब्लैंक का जो हमारा ये जिंक का जो सॉल्यूशन था उसको वापस उसके अंदर फिल्टर आउट कर देंगे। और उसके बाद हम जो ये हमारी इसके अंदर जो हमारा जिंक का सैंपल था वो इसके अंदर डालेंगे। हम इसको थोड़ा ओवरफ्लो नहीं होने देंगे, मतलब थोड़ा सा भर जस्ट इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको जो ये फिल्टर पेपर है उससे साइड से पोंछ देंगे, जिस तरह मतलब ये पानी मशीन के अंदर ना जाए, जिस वजह से ख़राब ना हो। अब इसको अच्छे से ड्राई आउट करने के बाद हम इसको मशीन में डाल देंगे। इस तरह डालेंगे कि जो सरफेस है वो रफ सरफेस वो हमारी तरफ हो।
डालने के बाद हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद कोई हम नंबर डिजिट मांगे जिसका इसका 123, इसका 123 दबा देंगे। उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे और जो हमें मशीन है उसने हमारी वैल्यू दे दी 0.0। सो जो ये हमारी मिट्टी थी उसकी वैल्यू 0.0 थी। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे डाउन दबाकर। अब ये जैसे माइक्रो आता है तो इसको फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर से डाउन प्रेस करेंगे, अब फिर से डाउन प्रेस करेंगे जब तक अब ये हमारा आ गया आयरन में। अब इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे। देन आफ्टर ये हमसे ब्लैंक की वैल्यू मांग रहा है तो जो हम इसके अंदर ब्लैंक पुट कर देंगे, ब्लैंक पुट करेंगे और इस तरह से पुट करेंगे कि ये मतलब ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बस जस्ट फिल होना चाहिए। उसके बाद हम जो ये इसको थोड़ा सा साइड से पानी लग गया होगा तो उस वजह से इसको थोड़ा साफ कर देंगे, इस वजह से पानी जो लगा है वो साफ हो जाए, एक तरह से मशीन खराब ना हो। उसके बाद इसको मशीन में रख देंगे सरफेस अपनी तरफ करके। देन आफ्टर उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे और वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमारे ब्लैंक की वैल्यू आ गई 241.5। देन आफ्टर हम डाउन प्रेस करेंगे, देन आफ्टर एंटर प्रेस करेंगे, देन आफ्टर हम उसमें सैंपल डालेंगे। तो जो हमारा ये ब्लैंक था इसको फिर से उसी ट्यूब के अंदर वापस से डाल देंगे और देन आफ्टर हम उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये सोयल सैंपल था इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा फिल्टर पेपर से साफ करके साइड से और मशीन के अंदर पुट कर देंगे एंड हेंस हमारी उससे क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एट द एंड। सो जैसे कि ये हमने डाल दिया है फॉर FE। सो ये फिर से एंटर प्रेस करेंगे, देन आफ्टर इसका नंबर भरेंगे दैट इज 123, एंटर प्रेस करेंगे, देन आफ्टर 123 पुट करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फॉर FE। जैसे कि जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 7.59, किसके लिए, फॉर FE के लिए। हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे एंटर और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे और देन आफ्टर हम इसमें कॉपर के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो कॉपर के बाद इसमें ब्लैंक, अभी फिर से हमसे वही ब्लैंक मांग रहा है तो हम इसमें जो कॉपर का ब्लैंक हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे और देन अगेन विद आवर फिल्टर पेपर वी विल मेक द वाटर आउट जो इसके साइड में लगा हुआ है और फिर से इसको मशीन के अंदर डाल देंगे। अब हम ये जो हमें रीडिंग दे देगा दैट इज जो कि हमारे पास कॉपर की ब्लैंक की वैल्यू आ जाएगी 237.6 जो हमारी वैल्यू आई है। देन आफ्टर हम फिर से डाउन प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमसे सैंपल मांग गया तो जो हमने ये हम वापस से ब्लैंक के अंदर डाल देंगे। ब्लैंक के अंदर डालने के बाद हमारा जो सोयल का सैंपल था उस सोयल सैंपल को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा फिल्टर पेपर से साइड से साफ कर देंगे और साइड से साफ करने के बाद हम इसको फिर से मशीन के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास सोयल की वैल्यू आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, देन आफ्टर 1 2 3 प्रेस करेंगे, आफ्टर एंटर 1 2 3 पुट करेंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे और हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी 25%, जो कि शो कर रहा है कि अच्छा खासा कॉपर इसके अंदर। फॉस्फोरस के लिए जो हमारे सैंपल थे, जो सैंपल था और जो ब्लैंक था वो 2-2 ml ले लिया है और 2-2 ml लेने के बाद देन आफ्टर हम इसमें pH1 की 5 ड्रॉप दोनों के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल के अंदर 5 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे 5 ड्रॉप्स ब्लैंक के अंदर। देन आफ्टर इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये pH2 था इसके अंदर 2 ml pH2 डालेंगे दोनों के अंदर। साइड वाइज से हम इसको डालेंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके हम इसको अंदर डाल देंगे 2 ml। सो हमें ये 4 ml तक करना था और जैसे कि ये 4 ml इसके अंदर हम 4 ml डाल देंगे, सॉरी 2 ml डाल देंगे। जैसे कि ये हम ये इसके अंदर फिर साइड से लीक कर रहा था, इसके अंदर डालेंगे ब्लैंक के अंदर। सो ये हमारे जैसे 4 था तो हम इसको 5 तक कर देंगे, इन शॉर्ट 1 ml और डाल देंगे pH3। देन आफ्टर जो हमारा सोयल सैंपल था उसके अंदर हम 1 ml pH3 डाल देंगे। 1 ml pH3 डालने के बाद हम इसके अंदर इसको डाइल्यूट कर देंगे विद डिस्टिल्ड वाटर टू 10 ml। इन शॉर्ट इसको अब हम 10 ml तक पहुंचा देंगे, यानी 5 ml इसमें पानी डाल देंगे। अब ये 5 ml पानी हम जैसे कि इसमें डाल देंगे। सो ये हम इसके अंदर, मेरा मुँह देख लो, ये काम करो।
तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे 10 ml, ये हो गया है। अब हम अगेन फिर से इसके अंदर 10 ml ऑफ पहुँचा देंगे और ये हमारे, अब इसको हम 2-4 मिनट के बाद इसकी रीडिंग ले लेंगे। अपनी फॉस्फोरस की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एंटर प्रेस करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे। मैक्रो आ गया, अब ये जैसे कि माइक्रो पे चले गए हैं, सो एक बार इसको हम रीसेट करेंगे। तो ये हमारा मैक्रो पे आ गया है। अभी हमसे ओसी मांग रहा है तो हम इसको डाउन प्रेस करेंगे। देन फॉस्फोरस, अब ये फॉस्फोरस आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये ब्लैंक मांग रहा है तो हम ये जो हमारी ट्यूब थी इसके अंदर ब्लैंक जो सॉल्यूशन था वो हम इसको डाल देंगे, जैसे कि हमने 15 मिनट्स के बाद किया है। सो हमारी एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी इससे। अब हम इसको थोड़ा ओवरफ्लो ज़्यादा नहीं करेंगे और इसको थोड़ा सा फिल्टर पेपर से साइड से एक बार थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा वाटर जो इसके साइड में लगा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। अब वाटर बाहर निकलने के बाद इसको हम मशीन के अंदर बड़ा ध्यान से डाल देंगे, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे ब्लैंक की वैल्यू देगा। अब हम फिर से डाउन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। देन अगेन ये हमसे सोइल सैंपल मांग गया तो हम उसको निकाल कर जो हमारा उसको फिर वापस से डाल देंगे, ब्लैंक सॉल्यूशन के अंदर वापस पुट कर देंगे। एंड देन आफ्टर हम इसको इसके अंदर जो हमारा सोइल सैंपल था वो इसके अंदर पुट करेंगे, सोइल सैंपल पुट कर देंगे। और देन आफ्टर इसको उस मशीन के अंदर साइड से थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा वाटर निकाल के और मशीन के अंदर रख देंगे। देन आफ्टर ये हमें जो है यहाँ से हमें उसकी फॉस्फोरस की वैल्यूज मिल जाएंगी फॉर द सैंपल जो हमने लिया था। एंटर प्रेस करेंगे, देन आफ्टर अगेन एंटर प्रेस करेंगे। देन आफ्टर 123 या जो भी हमने लिया है वो प्रेस पुट करेंगे और उसके बाद हम अपना फिर से एंटर करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके अंदर 5 ml सल्फर स्टैंडर्ड डालेंगे। ये 5 ml इसके अंदर सल्फर स्टैंडर्ड हम पुट करेंगे। देन आफ्टर 5 ml पुट करने के बाद हम जो ये तीनों हमारा सल्फर का जो स्टैंडर्ड था, साथ में जो ब्लैंक था और ये सोइल सैंपल था, इन सभी के अंदर S3 पुट करेंगे और जो तीनों के अंदर 4-4 ड्रॉप्स डालेंगे। इन तीनों के अंदर 4-4 ड्रॉप्स हम S3 की पुट करेंगे। के अंदर S2 पुट करेंगे 0.2 ग्राम। तो ये 0.2 ग्राम ये तीनों के अंदर हम पुट करेंगे। जस्ट फिर ज़्यादा फिल हम नहीं करेंगे और ये तीनों के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा शेक करेंगे अप एंड डाउन फॉर 50 टाइम्स अप्रोक्स। जैसे कि हम ये इसको शेक करने चाहते हैं, इसको फिर हम शेक करके और ऐसे रख देंगे। देन आफ्टर शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट रुककर इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट है जैसे कि S1 वो हम पुट कर देंगे। हम 1 ml ऑफ S1 डालेंगे, जैसे कि 5 मिनट हमारी हो चुकी है। सो आफ्टर 5 हम ये S1 डालेंगे इस तीनों के अंदर। तो जैसे कि ये जो S1 है थोड़ा सा हार्ड होता है, दरअसल इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार अटक जाता है। सो हम ये इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, S1 इसके अंदर थोड़ा सा पुट करेंगे। S1 डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, S1 चूँकि हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा शेक करके और फिर हम इसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे और हाफ एन आवर के बाद इसकी रीडिंग्स निकाल लेंगे। जो हमारा पोटेशियम स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हम 1 ml ऑफ पोटेशियम स्टैंडर्ड इसके अंदर डालेंगे। ये हमने डाल दिया है। 1 ml ऑफ ब्लैंक सॉल्यूशन डाल देंगे इन चीज़ को और ये टोटल 2 ml हो जाएगा। देन आफ्टर जो हमारा ब्लैंक सॉल्यूशन बना था उसके अंदर उसको हम 2 ml तक पहुंचा देंगे। बाकी सारा उससे फिल्टर आउट कर देंगे और 2 ml से छोड़ देंगे। PT1 डालेंगे। देन आफ्टर जो हमारा नेक्स्ट जो ब्लैंक सॉल्यूशन था उसके अंदर 1 ml ऑफ PT1 डालेंगे। देन आफ्टर जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था उसमें हम 1 ml ऑफ PT1 डालेंगे।
देन आफ्टर हम उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर, इन तीनों सैंपल्स के अंदर PT2 डालेंगे और उसकी 11 ड्रॉप्स तीनों में डाल देंगे, 11 ड्रॉप्स डाल देंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसको शेक कर देंगे। शेक करने के बाद इसको 5 मिनट्स तक इसको रख देंगे। देन आफ्टर इसकी हम इसके अंदर हम PT3 ऐड करेंगे। 5 ड्रॉप ऑफ PT3 तीनों के अंदर डालेंगे। 1 2 3 4 5 इन तीनों के अंदर 1 ml PS2 जो है वो ड्रॉप आउट कर देंगे। PS2 ड्रॉप आउट तीनों के अंदर हम कर देंगे। ड्रॉप कर दिया, उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, इसको 10 ml तक इसको डाइल्यूट कर देंगे। जैसे कि हमारा 5 ml था तो ये हम इसको 10 ml तक ले जाएंगे, 10 ml तक ले जाएंगे। इसी तरह तीनों को ले जाएंगे और उसके 5 मिनट बाद इसकी रीडिंग ले लेंगे शेक करने के बाद। ये फर की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। देन अगेन डाउन करते जाएंगे तब तक हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं आ जाता। फिर देन अगेन प्रेस करेंगे और सल्फर तक लेके जाएंगे इसको। देन सल्फर आने के बाद इसको एंटर प्रेस करेंगे। देन उसके अंदर जो ये हमसे ब्लैंक मांग रहा है तो जो ये ट्यूब थी इसके अंदर हम सल्फर का ब्लैंक डालेंगे, ओवरफ्लो नहीं होने देंगे। देन इसको थोड़ा सा पेपर से साइड से साफ करके और फिर इसको मशीन के अंदर डालेंगे। रफ सरफेस हमारी तरफ होना चाहिए, इस तरह इसको डालेंगे। देन हमारे पास 105.4 इसकी वैल्यू आ गई है। देन हम अगेन डाउन पुट करेंगे और एंटर दबाएंगे। स्टैंडर्ड जो हमारे ट्यूब उसके अंदर हम स्टैंडर्ड डालेंगे एंड उसको डाल के फिर उसके बाद साफ करके थोड़ा सा मशीन के अंदर पुट करेंगे। फिर मशीन के अंदर पुट करने के बाद हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज 0.0. देन अगर हम डाउन पुट करेंगे एंटर दबाएंगे। देन ये हमसे सैंपल मांगेगा, फिर हम उसको वापस से निकाल कर और इसके अंदर वापस से फिर फिट आउट कर देंगे। देन आफ्टर हम जो हमारा सोयल सैंपल था उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको डालेंगे और साइड से थोड़ा सा साफ कर देंगे। देन आफ्टर इसको हम डालेंगे और फिर से एंटर पुट करेंगे तो हमारे पास ये सोयल सैंपल का नंबर मांगेगा, उसको हम डालेंगे। आफ्टर एंटर पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ गई 0.13 जो कि हमारे पास काफ़ी कम वैल्यू है। पोटेशियम रह गया, उसके लिए चालू करेंगे, उसके फिर से एंटर प्रेस करेंगे। देन आफ्टर उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तक लेके जाएंगे। देन आफ्टर उसको हम ये क्या था हमारा गया पोटेशियम तक सेट डाउन करेंगे और पोटेशियम तक इसको लेंगे। पोटेशियम आ गया। देन ये हमसे ब्लैंक मांगेगा, हैंस ये हम ब्लैंक मशीन इसके अंदर पुट करेंगे। हम सबसे पहले इसको एक बार साफ कर लिया। देन आफ्टर इसके अंदर हम ब्लैंक पुट करेंगे ज़्यादा। देन आफ्टर इसको हम साइड से थोड़ा साफ करेंगे और इसको मशीन के अंदर पुट कर देंगे। देन आफ्टर हम एंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमारे ब्लैंक की वैल्यू आ गई है। देन आफ्टर हम डाउन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और ये हमसे फिर से स्टैंडर्ड के लिए पूछेगा। तो हमारा जो था इसको वापस हम इसके अंदर डाल देंगे और देन आफ्टर ब्लैंक जो था उसको स्टैंडर्ड को इसके अंदर वापस से डालेंगे, ओवरफ्लो नहीं होने देंगे और फिल्टर पेपर से साइड से थोड़ा सा साफ करेंगे और उसको फिर मशीन से ऑपरेट करेंगे। देन आफ्टर हमें रिक्वायर्ड रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड आ गई है। देन आफ्टर हम इसको खाली करेंगे। देन आफ्टर हम सैंपल के लिए डालेंगे, उसके लिए हम इसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन डालकर और मशीन के अंदर डाल देंगे और देन आफ्टर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस देन आफ्टर हम उसके नंबर डालेंगे, कुछ भी जस्ट जो हमारा 123 या 4 जो भी है
देन आफ्टर एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। So after soil testing, we have performed soil testing experiment and the results are pH value of soil is 6.98, EC is 0.412, final result of OC is 0.4789, pH of zinc is 7.8, of iron is 7.59, of copper is 25.77 and phosphorus is 45.6 and manganese is 20.99. And these are the values of different metals present in our soil sample. And value of S is 10.13 and K is 112.